شام کو وزٹ پہ جاتے ہیں تو بھائی ایک گیت اکثر گاتے ہیں ساتھ ساتھ. تو جب بھی وہ گیت گاتے ہیں جاوید بھائی تو میں کہتا ہوں آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اس گیت کے لیے پر کوئی نہ کوئی سربند تیار کر کے رکھوں. وہ جو گیت گنگناتے ہیں وہ گیت ہے خداوند یسوع کچھ یوں ہے کہ تو آسمان پہ چلا گیا ہے اور تو کہہ رہا تھا کہ میں جلدی آؤں گا. اب تو وہاں پہ کون سے کاموں میں جا کے الجھ گیا ہے کہ آ نہیں رہا. کچھ گیت کے بول اس طرح سے تھے کہ تو نے تو کہا تھا کہ میں جلدی آؤں گا مگر اب تو کون سے کاموں میں وہاں پہ الجھا ہے کہ تو آ نہیں رہا. ابھی تو ہمیں بات کہی گئی کہ یسوع مسیح ہمارا درمیانی ہے. میں اور آپ اگر مسیحی ہے, اگر یسوع مسیح پر ہمارا ایمان ہے تو یاد رکھیں کہ ہم بڑے بابرکت لوگ ہیں. وہ اس لیے کہ ہمارا درمیانی خدا کے درمیان اور ہمارے درمیان یسوع مسیح. اور آسمان پہ وہ کیا کر رہے ہیں جب سے گئے؟ شفاعت کر رہے ہیں. جب سے خدا یسوع مسیح آسمان پر گئے ہیں وہ شفاعت کر رہے ہیں. کئی دفعہ شاید لکھتے ہیں خداوند تو نے تو کہا تھا کہ میں جلدی آؤں گا مگر تو خداوند آ نہیں رہا, تو کیا کر رہا ہے وہاں پہ؟ خداوند شفاعت کر رہا. عبرانیوں کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح آسمان میں ہماری شفاعت کر رہا ہے. اور یاد رکھیں یہ شفاعت کا کام شروع ہوا اور جاری ہے اور اس نے صدیوں تک جاری نہیں رہنا. یہ شفاعت کا کام اب ختم ہونے کو ہے. یہ شفاعت کا کام اب تمام ہونے کو ہے. بائبل اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ شفاعت کب شروع ہوئی آسمان میں, اور بائبل بتاتی ہے کہ یسوع کی آمد سے پہلے یہ شفاعت ختم ہو جائے گی. ابھی اس وقت یسوع مسیح کا کفارہ بخش لہو موجود ہے, اور جب تک یسوع مسیح کا کفارہ بخش لہو موجود ہے اور یسوع مسیح شفاعت کر رہے ہیں باپ کے سامنے آسمانی ہیکل میں, تب تک میرے اور آپ کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. دنیا کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. مگر جو ہی وہ شفاعت کا کام ختم ہوا, کفارہ بخش لہو ختم ہوا, وہ پاک روح جو عید پینتیکوست کے وقت زمین پر اٹھیلا گیا, اٹھا لیا جائے گا, تب ایک حکم صادر ہوگا, بس جو برائی کرتا ہے وہ برائی کرتا جائے, جو نجس ہے وہ نجس ہوتا جائے, جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے, اور جو راست باز ہے وہ راست بازی کرتا جائے. اے بادشاہ دانش مند بنو, بیٹے کو چومو, ایسا نہ ہو کہ وہ راستے میں اپنے غضب سے تمہیں ہلاک کر دے. دانش مند بنیے. یہ شفاعت زیادہ دیر جاری نہیں رہنے والی. دنیا کے حالات بتاتے ہیں کہ یہ شفاعت زیادہ دیر اب جاری نہ رہے گی. کیا دنیا کے حالات ایسے بگڑتے جا رہے ہیں؟ یسوع مسیح نے ہمیں آگاہ نہیں کیا. انہوں نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے, میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا ہے تاکہ جب یہ سب کچھ ہو تو تم جانو کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا. آج ہمارے بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں, ہماری عورتوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے, یسوع مسیح کے نام پر لوگوں کو سولیاں دی جا رہی ہیں, ان کے سر قلم کیے جا رہے ہیں, ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے, انہیں یسوع مسیح کا انکار کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. کیا یہ نئی بات ہے؟ نہیں, یہ نئی بات نہیں ہے. اسے ہونا ہے اور یہ ہوگا, اور ہم زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہنے والے. یہ جو بدی کی لہر پڑی اب آ رہی ہے, یہ اس نے رخ کیا ہوا ہے ہمارے خاندانوں کا. مگر جتنی دیر ہم غفلت کی چادر اوڑھ کے سو سکتے ہیں, سو لیں آرام سے. دور نہیں ہے یہ لمحے, یہ اذیتیں اور ہم سے زیادہ دور نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ہم کہیں گے کوئی بات نہیں, خداوند تو نہ بھی شفاعت کرے تو ہے نا, کھانا فری ملتا ہے, وہیں وہاں پہ چلے جائیں گے, 4 دھکے ہیں نا, کھا لیں گے جا کے, کیا مشکل ہے. ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا. ہم نے
جانتا ہے کہ اس کو خداوند نے دعا کے لیے چنا، مگر وہ بندہ دعا نہیں کرتا۔ کسی کے گھر میں ہم دعا کر رہے تھے، اس کے گھر میں خدا نے اس کو دعا کے لیے چنا، اس دن خدا نے اس کو کلام دیا کہ تجھے خداوند چاہتا ہے کہ تو دعا کرے، مگر اس نے دعا کی نہیں، اپنے لیے بھی نہیں کی۔ یہ اذیت کا دور اب زیادہ دیر تک دور رہنے والا نہیں ہے، اس کا رخ ہمارے گھروں کی طرف ہے۔ اور اگر آج ہمارا ایمان یسوع مسیح میں مضبوط نہیں ہوا تو یاد رکھیں ہم بڑی جلدی ایمان چھوڑیں گے، ہماری اولاد بڑی جلدی ایمان چھوڑے گی۔ اگر آج ہم اپنی اولاد کو خدا کے گھر کے ادب و آداب نہیں سکھاتے تو وہ خدا کے گھر کا کبھی ادب نہ کریں گے۔ اگر آج ہم اپنی اولاد کو خدا متعارف نہیں کرواتے تو کبھی خداوند کو وہ جان نہیں سکیں گے۔ اذیت ناک دور آیا ہے، اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر گھر کے اندر ہر جمعرات خداوند کے نام کو جلال دیں، 2-4 گھنٹے دعا میں گزاریں، ہمارے گھر چرچ بن جائیں۔ جب سے ہم نے گھروں میں سے چرچ کو نکال کے ایسی بلڈنگز میں رکھ دیا ہے، ہمارے گھروں میں چرچ نہیں رہا اور ہمارے گھر چرچ سے خالی ہو گئے ہیں۔ ہم دعا نہیں کرتے اپنے گھر میں، ہم بائبل نہیں پڑھتے۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر میں کبھی بائبل نہیں پڑھتے، جو اپنے گھر میں کبھی بچوں کو ساتھ لے کے دعا نہیں کرتے، جو اپنے گھر میں کبھی اپنے خاندان کے لیے جو دوستوں کو اکٹھا کر کے دعا نہیں کرتے۔ کلام کی بات یہاں سے شروع ہوگی، یہاں پہ ختم ہوگی، لیکن عمران اور قادری کی بات یہاں سے شروع ہوگی، رات 2 بجے گے مگر ہماری باتیں ختم نہیں ہوگی، لیکن خدا کے کلام کی بات یہاں سے شروع ہوگی، یہاں پہ ختم ہوگی۔ سیاست کی باتیں کریں گے اتنا بھی نیند اڑے گی، خدا کے کلام کی باتیں کریں گے ہمیں پرابلم ہوگا پرابلم، کیونکہ کوئی اجازت نہیں دیتا کہ آپ خدا کے کلام کی، کوئی اجازت نہیں دیتا۔ بیماریوں نے ہمیں گھیر لیا ہے نا، دشمن نے اپنا گھیرا تنگ کر لیا ہمارے گرد، ہمارے ایمان کا سودا کیا جانے کو ہے، جلد میرے اور آپ کے ایمان کی قیمت لگنے کو ہے۔ دیکھتے ہیں کون کتنے میں بکتا ہے، مگر جلدی بڑے لوگ بکیں گے، لیکن ہماری خوبصورت خدا کے کلام کا جو عنوان میں نے کہا وہ ہے the beautiful thing، اور the beautiful thing is this کہ ہمارا خدا یسوع مسیح آسمان پر ہمارا شفاعتی ہے، وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہاں پہ بھی ہے اور آج ہمارے درمیان میں بھی ہے۔ ایمان کی نظروں سے دیکھیں وہ یہاں پر موجود ہے اور آپ کی بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہردے کے اندر شانتی بھرنے کی قدرت رکھتا ہے، تازگی دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ یہاں ہے، مگر دیکھیں تو صحیح نا۔ آنکھیں دیکھنا بڑا ضروری ہے، آنکھیں کھولنی بڑی ضروری ہے۔ یسوع کو دیکھنے کی والی آنکھیں خاص ہوتی ہے، یہ آنکھیں 24 گھنٹے جو ٹیلی ویژن دیکھتی ہیں یہ یسوع مسیح کو دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ اس کی ویژن میں اور اس کی ویژن میں بڑا فرق ہے دونوں ویژن میں۔ وہ پاک سی آنکھیں ہوتی ہیں، زیادہ دیر تک اب ہم دور نہیں ہیں مصیبتوں کے، اور ہمارے درمیان حائل دیوار دور نہیں ہے، جلد کرائی جانے کو ہے، اور اذیتیں ہمارا تعاقب کر رہی ہیں۔ مگر خدا کے کلام میں جو خوبصورت بات ہے، دانییل کو خداوند نے بتایا، خدا کے فرشتے کہتا ہے دانییل ڈر مت، اخیر وقت میں میکائیل جو مقرر فرشتہ ہے وہ تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے اٹھے گا، اور اس وقت ایسا بڑا مصیبت کا وقت ہوگا کہ نہ دنیا کے شروع سے ہوا اور نہ پھر کبھی ہوگا۔ خوشخبری یہ ہے، the beautiful thing یہ ہے کہ یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہے کہ برے وقت میں میکائیل مقرب فرشتہ خدا کے فرزندوں کی حمایت کے لیے اٹھے گا۔ برے وقت میں ہمارا شفاعتی ہمارے لیے مسلسل شفاعت کرنا ترک نہ کرے گا۔ برے وقت میں ایمانویل اس نے کہا جب تو آگ میں سے گزرے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا، جب تو ندیوں کو عبور کرے گا وہ تجھے ڈبا نہ سکیں گی، جب تو جنگلوں میں سے گزرے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا، کیونکہ میرا نام ایمانویل ہے، خدا ہمارے ساتھ۔ رکھیے اسے گھروں سے نہ نکالیے، رکھیے۔ کیا عنوان ہے آج کا؟ The beautiful thing۔ بائبل مقدس میں ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ چاروں اناجیل میں یہ واقعہ مندرج ہے، چاروں اناجیل میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور واقعہ بڑا اہم ہے۔ کس نے یسوع مسیح کی موت کی، زندگی کی، جی اٹھنے کی اور آسمان پر جانے اور واپس آنے کی کہانی سن رکھی ہے؟ یاد رکھیں 5 پلرز ہیں مسیحیت کے: یسوع مسیح کا پیدا ہونا، یسوع مسیح کا مرنا، یسوع مسیح کا دفن ہونا، یسوع مسیح کا جی اٹھنا، اور یسوع مسیح کا آسمان پر جانا۔ آمین۔
बतौं पर ईमान रखते हैं और यीशु मसीह की आमद के मुंतज़िर हैं। हालेलुया। ये दुनिया हमारे घर नहीं है, ये दुनिया हमारे मकाम नहीं है। 50, 60, 70 साल की एज उसने हमें दी है। 900 कितने साल उम्र थी आदम की? 930 साल आदम की उम्र थी। मथुसेला 967 तक, और हजार साल उम्र रही लोगों की। तूफान नूह से पहले 2000 साल तक लोगों की उम्रें इतनी थी। तूफान खुदा ने भेजा तो खुदा ने कहा मेरी रूह इंसान से हमेशा मज़ाहमत ना करती रहेगी। तो भी उसकी उम्र कितने वर्ष होगी? 120 बस। जो कभी 900 साल 800 साल उम्रें थी, खुदा ने कहा अब इंसान की उम्र कितनी होगी? 120 बस तूफान के बाद। और मेरी रूह इंसान से मज़ाहमत हमेशा ना करती रहेगी। मज़ाहमत का मतलब है मेरी रूह इंसान से जिरा ना करती रहेगी। मेरी रूह इंसान को उसके गुनाह और उसकी बदी और उसकी लापरवाही और उसकी सुस्ती और उसकी हठहरामी और उसकी बगावत जो मेरे खिलाफ करता है, मुसलसल मेरा रूह उसको समझाता न रहेगा। मेरा रूह इंसान से हमेशा मज़ाहमत ना करता रहेगा। एक वक्त आएगा कि मेरा रूह इंसान को मज़ाहमत करना छोड़ देगा। वो वक्त आपकी जिंदगी में ना आए जब खुदा का रूह आपको मज़ाहमत करना छोड़ दे और वो कहे बस तू बदकारी करता है, अब तू बदकारी करता रहे, जा। अब तू निज्जसपन को पसंद करता है, निज्जस होता जा। अब तू नापाक है तो नापाक ही होता जा, क्योंकि खुदा ने कह रखा है मेरी रूह इंसान से हमेशा मज़ाहमत ना करती रहे। ज्यादा देर तक खुदा हमसे मज़ाहमत ना करेगा। कभी 900 साल 700 साल उम्र थी, खुदा ने कहा तो भी अब इंसान की उम्र 120 वर्ष की होगी। और फिर खुदा के अपने बंदे दाऊद की मार्फत फरमाया 70 बरस थी, 80 बरस थी, आखिर में फिर भी अब और भी उम्रें कम है। अब रेशो है ज्यादा से ज्यादा 50 और 60 मेडिकल के लिहाज से, और इन 50 और 60 सालों में हमें यीशु मसीह को जानना है। इन 50 और 60 सालों में हमें अपनी जिंदगी के बारे में जानना है। इन 50-60 सालों में हमें यीशु से रिश्ता जो है वो इस्तवार करना है। हमें यीशु मसीह को बतौर अपना इफ़ज़ी नजात दहिंदा और दरमियानी के तौर पर समझना है। हमने यीशु मसीह को आज तक शाफी समझा है, जवाब देने वाला समझा है, हमने बरकत देने वाला समझा है, पैसे उसे देने वाला समझा है। हमने यीशु मसीह को सिर्फ बरकतें देने वाला दरमियानी ही नहीं समझा, शफायती ही नहीं समझा। और खूबसूरत बात है कि हमारा यीशु मसीह हमारा दरमियानी है। और दुख उस वक्त होता है जब लोग आपको वो ना समझे जो आप हैं और आपको वो समझे जो आप नहीं हैं, और आपको ज़ियत होगी। आपके बच्चे जब आपको वो ना समझे जो आप हैं, आपको वो समझे जो आप नहीं हैं। वालिदैन होते हुए आपको ज़ियत होगी कि मेरे बच्चे नहीं मुझे समझते तो मैं दूसरों को क्या करूं। आज हम अपने मसीह को नहीं समझते तो वो दूसरों से गिला गया है। 36 बार कहा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि नशेबाज खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे, फरेब ना खो शराबी खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। क्या ये खुदा का कलाम है या नहीं? पर सिगरेट पीना नहीं सी छड्डी, शराब पीना सी छड्डिया कोई नहीं, मगर ये खुदा का कलाम है। सुना जरूर है, पर खुदा ने कहा मेरी रूह इंसान से हमेशा मज़ाहमत ना करती रहेगी। ज्यादा देर तक ज़मीर मलामत अब ना करेगा। एक वक्त आ जाएगा गुनाह हमें गुनाह ना लगेगा, एक वक्त आएगा बदी हमें बदी लगेगी नहीं, एक वक्त आएगा बुराई हमें बुराई नहीं लगेगी। और जब ये वक्त आ जाए तो समझ जाना खुदा के रूह ने आपसे मज़ाहमत करना छोड़ दी है। खुदा के रूह ने आपको अपने हाल पर छोड़ दिया है। और खुदा ना करे किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त आए कि पाक रूह उसकी जिंदगी से रूठ कर चला जाए। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है पाक रूह को रंजीदा ना करो, क्योंकि उसके वसीले से तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। पाक रूह का जिंदगी में होना द ब्यूटीफुल थिंग है। खूबसूरत बात है कि पाक रूह आपकी जिंदगी में। ये वाक्य जिसकी तरफ मैं तवज्जो ले जाना चाहता हूं, मैंने कहा बाइबल मुकद्दस में
चारों अंजील में ये वाकया लिखा है। अगर आपने यीशु मसीह के पैदा होने, मरने, जी उठने, आसमान पर जाने, वापस आने की अहम बातों पर यकीन कर रखा है, सुन रखा है, तो ये मसीहत के सतून है। और यीशु मसीह ने कहा जहां कहीं ये पांचों बातें की जाएंगी, जहां कहीं अंजील सुनाई जाएगी, जहां कहीं अंजील की खुशखबरी बयान की जाएगी, ये बात जो आज मैं आपसे करने को हूं, यीशु मसीह ने कहा ये भी की जाएगी। ये बात बड़ी अहम है, ये बात बड़ी जरूरी है, ये बात सुनना लाजिम है। अगर हमने अंजील सुन रखी है और ये बात नहीं सुन रखी, तो याद रखें हमने यीशु मसीह की बात को समझा नहीं। यीशु मसीह ने कहा जहां कहीं खुशखबरी की मनादी की जाएगी, जो कुछ आज यहां पर हुआ है वो भी बयान किया जाए। बाइबल मुकद्दस बताती है, लूका रसूल की अंजील के 7वें बाब की 36वीं आयत से 38वीं आयत तक पाक कलाम में क्या लिखा है? पढ़िए जरा एक आवाज होकर, जिनके पास खुदा का कलाम है, जिनके पास मेरी स्क्रीन से पढ़िए क्या लिखा है। जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इत्तरदान में इत्तर लाई और उसके पाँव के पास रोटी हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसू से भिगोने लगी। मैंने कहा कितने लोग पढ़ सकते अपने सर के बालों से, मगर सारे पढ़ नहीं रहे। कुत्ता समय क्या है, जब हम कहते हैं ना आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब 16वीं आयत करें, हम बाइबल पास रख के बैठे होते हैं, हमें ये गुमान होता है मतलब ऐसे आयत आती है। इसे स्पिरिचुअल प्राउडनेस कहते हैं। खुदा के कलाम का खुलना सच में हमारे लिए बरकत का बायस है। 36 बार आप एक आयत को पढ़े, 1000 बार पढ़े, हर बार वो आयत आपको नया मतलब देगी। हालेलुया। इसलिए जब भी कलाम पढ़ने को कहा जाए जरूर पढ़े, जरूर पढ़े। एक बार फिर करें। लिखा है फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की। लफ्ज जो फरीसी है उसका मतलब है रास्तबाज। लफ्ज फरीसी का मतलब है पाकबाज। और पौलुस रसूल के वक्त में, यीशु के वक्त में बताया जाता है कि तकरीबन 6000 फरीसी मौजूद थे। लफ्ज फरीसी का मतलब है पाकबाज। किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की। किससे दरख्वास्त की? यीशु मसीह से कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा। आमीन। बड़ी बात है। आप किसी से कहें जी हमारे घर में आके खाना खाइए, और वो आपके घर में खाना खाने आए। मुझे बड़ी खुशी है कि दफ़ा मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हुई अक्सर फ़ोन करके कहते हैं पैसा बाजो आज पुरानी चीज़ पकाइए। उनकी ख्वाहिश है हम खाना खाएं। कि दफ़ा हम कहते हैं जी आओ आज ज़रा खाना खाइए। कि दफ़ा हम फ़ोन करके कहते हैं जी आज बाहर ही ना खाना खा लिए। किसी के साथ खाना खाना एहसास है, तो उसने एहसास समझा, यीशु मसीह को घर में बुलाया, तो बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा। तो देखो एक पाक दामन औरत, कैसी औरत? वैसे अजीब नहीं, यीशु मसीह और बदचलन औरत रिश्ता देखे तो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, जिस शहर में यीशु मसीह खाना खा रहे थे, ये जानकर कि उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, सींगे मरमर के इतरदान में इतर लाए और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पूंछा और उसके पांव बहुत चूमे और उनका इतर डाला। बदचलन औरत बड़ी रोई, बड़े पांव चूमे, दूर खड़ी हुई, आंसुओं से पांव बदचलन औरत। हम यीशु मसीह के लोग से धुले लोग, प्रेज़ लॉर्ड, आते हैं खुदा के घर में। इज्जत उज्जत कोई नहीं करनी, रवैये से धुले हुए पाक है। खबरदार किसी ने
शायद 5 साल पहले आए थे, जब नौकरी गई थी उस वक्त ही रो के दुआ की होगी। वो कौन सा वक्त था जब लास्ट टाइम आपकी आंखों में दुआ करते वक्त आंसू आए थे? रोते नहीं है, जरूरतमंद ही नहीं है, हम एहसास ही नहीं कि हम गुनहगार हैं, क्योंकि हम तो रास्तबाज है, पाक है, मगर बदशगल है, रोती हुई आई है, अफसोस से पाँव गए और पाँव इतने चूमे हैं। हमारा हाल ये है कि हमारे खादम कलाम सुनाते सुनाते बाइबल को भी पाँव में रख देते हैं। इंडियन चर्च में मैं गया, बाइबल उसने पाँव में रखी, मैं क्या प्लीज कहना चाहता है, दुख आ जाता है, हमारा ये हाल है। तो उसने उसके पाँव चूमना नहीं छोड़े। औरत कौन है? अच्छा, ये औरत वही है 11वें घंटे में इसको फरीसी पकड़ के यीशु मसीह के पास लाए, कहते जी ये बदकिरदारी में ऐन वक्त पकड़ी गई। मूसा ने कहा ऐसी औरत को संसार करें, आप फरमाइए आप क्या कहते हैं? यीशु मसीह को फंसाना चाह रहे। होना तो ये चाहिए था कि बंदे को भी साथ पकड़ के लाते। यीशु मसीह पूछ सकते थे अच्छा बंदा कहे, औरत को क्यों पकड़ा? फंसाना चाहते हैं। यहूदियों की बड़ी सजा पत्थर मार मार के मारना है। वो कहता है मूसा ने कहा हमें इसे संसार करे, तू क्या कहता है? उसने कहा मारो पत्थर, लेकिन मारे पत्थर वो पहला जो गुनहगार नहीं है। उन्होंने लिखना शुरू किया, जब सर उठाया तो कोई भी नहीं था। यीशु मसीह ने कहा औरत वो जो इल्जाम लगाते थे तुझ पर कहां? उसने कहा खुदावंद वो तो चले गए। उसने कहा फिर तू भी चली जा, मैं भी तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, पर आइंदा गुनाह ना करना। अगर आज रात चाहते हैं कि आप बात हो आज शाम, तो यहां से निकलते वक्त सब कुछ छोड़ जाए। आइंदा सिगरेट ना पीना, आइंदा शराब ना पीना, शराबी खुदा की बादशाही में दाखिल हो, झूठ मत बोलना, आइंदा किसी की चीज मत उठाना, जो आपका नहीं है वो मत लेना, चाहे वो पेपर का टुकड़ा ही क्यों नहीं वो आपका नहीं है, चाहे वो एक अल्फी 2 रुपए की क्यों नहीं है वो आपकी नहीं है, चाहे वो एक दम है, 1 इंची टेप है वो आपकी नहीं है, उसको मत लेना। आइंदा गुनाह न करना। मैं भी तुझ पर कोई इल्जाम ले गया था तो आज यीशु मसीह आपको बगैर बेइल्जाम लगाए यहाँ से भेज देंगे, क्योंकि वो आपके क्या है? दरमियानी है, और बाप से आपकी शिकायत करेंगे, मेरे नाम से मेरे लहू से इन्हें माफ कर दीजिए। बाप कहेगा इन्होंने बड़े पाप किए हैं, इसके पाप में तुझे गिनवा सकता हूं, देख इसका कैटलॉग पूरा है, इसकी फरिश्त पापों की। यीशु कहेंगे मैं समझता हूं बाप, लेकिन तू जानता है मेरे खाते में जितनी नेकियां हैं मैं तेरी मिन्नत करता हूं सारी इनके खाते में डाल दे और इन्हें आग जाने दे। आज आपको पाप करके जाने देंगे, मगर वो आपसे कहेंगे जाते जाने से पहले आइंदा गुनाह न करना। आमीन। मैं नहीं कहूंगा हाथ उठाए, नहीं, ये फैसला ये मामला आपका अपने खुदा का है। तो ये बदशगल औरत है, यीशु मसीह ने उससे कहा तू गुनाह न करना। जब वो पकड़ी गई, लिहाजा उसके दिल में यीशु मसीह के लिए बड़ा इज्जत है, बड़ा एहतराम है, बड़ा एजाज है। और अब जब उस औरत को पता चलता है कि उस शहर में यीशु मसीह उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने को वहां पहुंचती है। सिर्फ इस वजह से नहीं, एक और भी वजह थी जिसकी वजह से उसने ये इत्र यीशु मसीह के पांव पर डाला, और भी एक वजह से जिसकी वजह से उसने यीशु मसीह के पांव चूमे, और भी एक वजह से जिसके इवज यीशु मसीह के पांव उसने आंसुओं से भिगोए हैं। एक और भी वजह थी, ये एक वजह थी, असल में 2 और वजूहात है। ये पहली वजह थी कि इसको यीशु मसीह ने मरने से यहूदियों के हाथ से छुड़ाया था, इसलिए वो अपने मौसम का शुक्रिया अदा करने के लिए आई। आमीन। लेकिन हम शुक्रिया नहीं अदा करते मौसम का। किराया दे के
उन्होंने हमें भेजा जहाज का यहाँ पे, कर्जा लिया सूद पे, हमें टिकट लेके दी, हमारे वीजे में मदद की। आज वो फोन करते हैं यार, फोन ना चुकी, पैसे ही मत दे। हम आसान फरामोश है, मगर ये औरत पाक दामन है कौन? आसान फरामोश नहीं है। कम से कम पहले मैं कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मसूल लेने वाले और कसबियां खुदा की बादशाही में तुमसे पहले दाखिल होंगे। तो आप सोच रहे थे बदचलन बनने नहीं, बदचलनी छोड़कर इनकर जो बात करती है खुदा के कलाम में, मैं तुमसे सच कहता हूं मसूल लेने वाली और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होंगी। प्रोस्टिट्यूट्स का ये तुम्हें कॉल पे जमा हो जाते हैं। हमारा ये है जो हम पाकदा बने 36 कॉलें करें तो क्या क्या पैसा सारू पता है समार या जिला फोन करना आवा कैसे दीजिए। दिल दुखता है, बड़ा ही दुखता है, आंसू आते हैं। फिर खुदा ने एक बात मुझे चंद दिन पहले दी। खुदा ने जो बात दी, खुदा हम क्यों इन लोगों के पीछे फिरते हैं, क्यों मारे मारे फिरते हैं, क्यों गुलामों की तरह फिरते हैं। तो खुदा के कलाम में ज़करिया की किताब में लिखा है, मैं आखिर ज़माने में हर फर्द बशर पर मनाजात का रूह डालूंगा और लोग उनके लिए ऐसे मनाजात करेंगे जिन लोगों ने उनको छेदा होगा, उनके लिए वो मनाजातें ऐसे करेंगे जैसे अपने इकलौते बेटे की मौत के लिए पे मनाजात करता है। हम तो फिर शुक्रगुजार है खुदावंद ने गुनहगार लोगों के लिए जो कभी हम जिस जिंदगी बसर करते थे, आज उनके लिए हमारे दिल में मोहब्बत रख दी, आज उनके दिल में हमारे लिए शिफायत के हालिया हाथ उठाने के लिए रख दिया है, आज उनके लिए हमारे दिल में प्यार पैदा कर दी है। इससे बड़ी एहसास कौन सा है? और ये है ब्यूटीफुल थिंग कि खुदावंद ने अपना रूह हम पर उठेला है। सच ये है कि ये चर्च है, खुदावंद इस चर्च पर हर फर्द बशर पर अपना रूह उठेलना चाहता है। हर फर्द बशर के अंदर ये बात भर देना चाहता है, वो गुनहगारों के लिए ऐसी तड़प रखे, उनके लिए मनाजात करें, उनके लिए आंसू बहाएं, उनके लिए रोएं, उनके लिए फरियाद करें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनको उठाएं। और बदचलन है आई है, यीशु मसीह के पांव चूमे, अंदर डाला, आंसुओं से पांव धोए, बालों से पांव साफ किए हैं, क्योंकि यीशु उसका मौसम है। यीशु मसीह ने उसको फरीसियों के हाथ से बचाया है। एक और भी वजह थी जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया है। लिखा है मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी क्या था, बीमार था। ये वही मरियम थी, ये वही मरियम थी जिसने खुदावन पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पूंछे थे। इसी का भाई लाजर बीमार था। सिर्फ बीमार था या मर गया था? मर गया था। इसी के भाई लाजर को यीशु मसीह ने 4 दिनों के बाद क्या किया था? ये यीशु के पांव पर इत्र डालने की दूसरी वजह थी। पहली वजह थी कि यीशु मसीह ने इसे फरीसियों के हाथ से, मौत से बचाया था। दूसरी वजह यह थी कि यीशु मसीह ने इसके भाई को 4 दिन कब्र में रहने के बाद क्या किया था? जिंदा किया था। तो जिसकी जिंदगी में इतने बड़े मौजज़े हुए हो, वो कैसे अपने मौसम को भूलेगी? ये वही मरियम थी जिसने यीशु मसीह के पांव पर इत्र डाला था, और ये मार्था और लाजर की बहन थी। तीसरी वजह और थी, ना सिर्फ यीशु मसीह का मौसम था, बल्कि यीशु मसीह इसके लिए क़यामत और जिंदगी भी था। ना सिर्फ यीशु मसीह इसके लिए क़यामत और जिंदगी था, यीशु मसीह इसका शाफी भी था। आमीन। कैसे यीशु मसीह इसका शाफी ठहरा? बाइबल मुकद्दस बताती है, बाज़ औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी। कितनी बदरूहें थी? ओह माय गॉडनेस,
अब आप समझ रहे हैं उसकी बद चलने की वजह क्या थी। बदरूहें, 7 बदरूहें थी और ये औरत उस वक्त बद चलन थी। वो 7 बदरूहें निकल गई, औरत नेक चाल चलन वाली बन गई। हालेलुया। अगर कोई मर्द बद चलन है, अगर कोई औरत बद चलन है, तो याद रखें कि उसके अंदर बदरू है और खुदावन चाहता है आप उसके लिए शिफायत करें। आमीन। खुदावन चाहता है आप उसके लिए शिफायत करें ताकि उसके अंदर से बद चलनी की बदबू निकल जाए। और अगर आप उसके लिए शिफायत नहीं करेंगे, आप उसके लिए दुआएं नहीं मांगेंगे और आप उसको कहेंगे बहन जी गिरजे आया करो, भाई जी चले आप यार एक दिन जाया करो गिरजे, वो नहीं आएगा। जब तक बदरू अंदर है तब तक वो नहीं आएगा। जब तक बदरू अंदर है तब तक बदचलनी खत्म नहीं होगी। इसलिए हमें उसके लिए पहले शिफायत करनी होगी और खुदावन ने हमें शिफायत का रूह दिया है, खुदावन ने हमें मनाजात का रूह दिया है। मगर अफसोस ये है कि हम अपने लिए दुआएं करना भूल गए। अगर हम अपने लिए दुआएं करना भूल गए तो खुदा का कलाम कहता है बस तू देख कहां से गिरा है, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, उठ पहले की तरह काम कर, नहीं तो मैं आकर तेरे चिराग को उसकी जगह से हटा दूंगा। देख अब तू ना सरद है ना गर्म है, नीम गर्म है और मैं तुझे अपने मुंह से थूक देने को तैयार। इससे पहले कि हम थूके जाएं, आए सरगर्म हो जाए। तो ये तीसरी वजह थी कि इसने यीशु मसीह के पांव पर इत्र डाला है, उसके पांव आंसुओं से भगोए हैं, क्योंकि यीशु मसीह इसका मौसम है, यीशु मसीह इसके लिए जिंदगी है, क़यामत और जिंदगी है, और यीशु मसीह इसका शाफी है। जिसके 3 रिश्ते यीशु मसीह के साथ हों उसके सामने 300 दिनार का इत्र क्या है। आमीन। बाइबल मुकद्दस बताती है, इसी वाक्य को मैंने कहा, यह वाक्य चारों अंजील में लिखा हुआ है। इतना खूबसूरत वाक्य है कि 4 अंजील को लिखने वाले तमाम मुसन्निफीन ने यह वाक्य अपनी अपनी अंजील में लिखा है, क्योंकि वाक्य बड़ा अहम है। मत्तस इसको यूं बयान करते हैं कि जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में खाना खाने बैठा तो एक औरत जटामासी का बेशकीमत खालिस इत्र संगे मरमर के इत्रदान में लाई और इत्रदान को तोड़कर इत्र उसके कहां पर डाला? सर पर डाला। पहले बयान में लिखा इत्र उसने कहां पर डाला? पांव पर डाला। यहां पर लिखा इत्र उसने कहां पर डाला? सर पर डाला। बास मगर बास दिल में खफा होकर कहने लगे ये इत्र किस लिए जाया किया गया, क्योंकि ये इत्र 300 दिनार से ज्यादा को बिककर गरीबों को दिया जा सकता था, और वो उसे मलामत करने लगे। यीशु ने कहा उसे छोड़ दो, उसे क्यों जिद करते हो? उसने मेरे साथ क्या की है? भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा न रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इत्र मरा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो उसने किया उसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। आमीन। तो इस औरत का वाकया यीशु मसीह ने हर प्रीचर को ड्यूटी बाउंड कर दिया है कि हर खादिम इस वाकये को बयान करे। अगर कोई खादिम ये वाकया बयान नहीं करता तो इसका मतलब है वो यीशु मसीह के कलाम पर अमल नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जहां कहीं इंजील सुनाई जाएगी ये वाकया भी इस औरत की यादगारी में बयान किया जाएगा। मगर क्यों यीशु जी, क्यों? पहली बात तो यीशु मसीह ने कहा इसलिए कि वो जो कुछ कर सकी उसने किया। आमीन। आप जो कुछ कर सकते हैं यीशु मसीह वही चाहता है कि आप करें। आप क्या कर सकते हैं? कौन क्या कर सकता है यीशु मसीह के लिए? ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? बताइए जरा, क्या कर सकते हैं? क्या आपने कभी
कि हम यीशु के लिए क्या कर सकते हैं। क्या हमने पूछा यीशु जी मुझे बताइए ना, मैं आपसे क्या कर सकता। वैसे तो हम दोस्तों कहते हैं 36 बार कहते हैं हाँ जी को मेरे लिए खिदमत हो तो दसो जी। कभी यीशु से कहा यीशु मेरे लिए खिदमत हो तो मुझे बताना। अगर आपके पास खिदमत नहीं तो आप अपने यीशु से कहा यीशु जी को मुझे खिदमत दीजिए। लेकिन वो जो कुछ कर सकी उसने किया। आप क्या कर सकते हैं यीशु मसीह के लिए? अगर आप नहीं कर रहे या तो फिर आप करना नहीं चाहते या फिर आपके लिए यीशु की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन इसके बारे में लिखा है वो जो कुछ कर सकी उसने किया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जहां कहीं इंजील सुनाई जाएगी ये जो इस औरत ने मेरे साथ किया है ये भी कहा जाएगा इसकी यादगारी में। दूसरी बात उसने मेरे साथ भलाई की। क्या की है? मेरे साथ भलाई की है। ये लफ्ज उसने मेरे साथ भलाई की है। एनआईवी इंग्लिश बाइबल वर्जन में लिखा है she has done a beautiful thing। उसने बड़ी खूबसूरत बात की है। यीशु ने कहा उसने मेरे साथ भलाई की है। क्या आप खुदा के साथ भलाई करना चाहते हैं? आमीन। अगर आप भलाई करना चाहते हैं तो आप जो कुछ कर सकते हैं यीशु मसीह के लिए करें। आमीन। अगर आप जो कुछ कर सकते हैं यीशु मसीह के लिए करेंगे तो खुदावंद कहेगा किसने मेरे साथ भलाई की। अगर आप किसी गरीब को दे सकते हैं तो खुदावंद कहेगा किसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि जो किसी गरीब को देता है वो खुदावंद को कर्ज देता है। अगर आप भलाई कर सकते हैं, किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं तो यीशु मसीह कहेगा इसने मेरे साथ भलाई की, क्योंकि मैं जब भूखा था तो इसने मुझे खाना खिलाया। अगर आप भलाई कर सकते हैं तो किसी कैदी की खबरगिरी करें तो यीशु मसीह कहेगा इसने मेरे साथ भलाई की, क्योंकि मैं कैद में था और ये मेरी खबरगिरी के लिए आया था। अगर आप किसी गरीब आदमी को कपड़े दे सकते हैं पहनने के लिए तो यीशु कहेगा इसने मेरे साथ भलाई की, क्योंकि मैं जब नंगा था तो इसने मुझे कपड़े पहनाए थे। तो यीशु मसीह ने उसने मेरे साथ भलाई की। She has done a beautiful thing। उसने ये खूबसूरत बात की, उसने मेरे साथ भलाई की। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा उसने मेरे साथ भलाई की, उसे दिक मत करो। उसे क्यों दिक करते हो? लोग दिक कर रहे हैं कि इधर 300 दिनार का जाया कर दिया गया है। 300 दिनार आज 678 रुपए बनते हैं। 1,678 रुपए का परफ्यूम यीशु पर जाया कर दिया गया है। 1,678 रुपए में 4-5 कन्वेंशनें हो सकती हैं। 15-16 घराने जो है बेवाओं के उनको राशन दिया जा सकता है। हजारों किस्म की फोटोएं खिंचवा के फेसबुक पे लगाई जा सकती है। 1,678 रुपए खर्च कर दिए। और धर्म जो उनके बन रहे थे वो 3880 धर्म बन रहे थे। 3880 धर्म यीशु पर जाया कर दिए गए। तो बंदे तो कहेंगे ना यीशु जी देख नहीं रहे आप पत्थर जाया कर रही है, धर्म जाया कर रही है औरत, तेरे पांव की तरफ बहा रही है। यीशु कहते से दिक मत कर, उसने मेरे साथ भलाई की है। वो जो कुछ कर सकी है उसने किया है। चला कीता यीशु मसीह लाख रुपया रोक देता। लोगों के नजदीक ये बेवकूफी हो सकती है, शौहर के नजदीक ये बेवकूफी हो सकती है, बीवी के नजदीक ये बेवकूफ, रिश्तेदार कह सकते हैं छड्डो करा किहड़े काम में पै रहो। 50,000 रुपया बनता ਤੁਹਾਡਾ हर महीने का ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। एक औरत कहती है सारी उम्र मैंने अपने माँ बाप को खिलाया है और अब मेरी शादी अगर हो ही गई है 40 साल की उम्र में तो माँ बाप कहते हैं चल मेरी दाल या पियो सालों का लिया कर। बताए मैंने क्या करूं? लोगों की नजर में ये ज़िया होगा, माँ बाप की नजर में खुदा के घर में देना ज़िया होगा, मगर खुदावंद कहते हैं इसने मेरे साथ भलाई की। और आप बाबरकत लोग हैं अगर आप खुदा के घर में देते हैं। मैं आपको बताता हूं बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक और वाक्य इसी के साथ जोड़े। ये औरत जो है आप उस शख्स को जानते हैं जिसने यीशु मसीह को मसा किया। किसने यीशु मसीह को मसा किया?
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस वक्त यीशु मसीह की मखसूसियत खुदा के कलाम में लिखा है, और यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसने कहा कि उसने मुझे मसा किया है, यानी खुदा ने मुझे मसा किया, और किसके वसीले से? यूहन्ना के वसीले से। तो यीशु मसीह के बपतिस्मे पर यूहन्ना को मसा किया गया, और पुकारने वाले की आवाज बियाबान में खुदावंद की राह क्या करो? दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदावंद के लिए शारा बनाओ। ये मुनादी थी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, और बियाबान में जो पुकारने वाले की आवाज थी, यशायाह की मार्फत कहा गया है, वो यूहन्ना नबी था। तो यूहन्ना नबी ने यीशु मसीह की आमद से पहले खुदावंद यीशु मसीह को मुतारफ करवाते हुए कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। आमीन। उसने यीशु मसीह को मसा किया। मगर जब यीशु मसीह मौत से जी उठे, कब्र से जी उठे, यीशु मसीह को सबसे पहले जाकर इस औरत ने देखा, यीशु मसीह को छूने लगी। यीशु ने कहा, मुझे मत छूना, मैं अभी तक पाप के पास नहीं गया, जाके मेरे भाइयों को बता। वो गई औरत, भाइयों को जाकर उसने बताया, और यशायाह की किताब में उसके बारे क्या खूबसूरत बात लिखी है, जो यशायाह ने पेशन गोई यूहन्ना के बारे की, बगैर किसी शक के ये पेशन गोई इस औरत के लिए। नबी आयत में, ऐ सयून को खुशखबरी सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, ऐ यरूशलेम को बशारत देने वाली, जोर से अपनी आवाज बुलंद कर खूब पुकार, और डर मत, यहूदा की बस्तियों से कह, क्या कह? देखो अपना। आमीन। उसने खुशखबरी दी जाके, उसने कहा, जा मेरे भाइयों से कह। और जब वो यीशु मसीह जी उठा, तो ये यशायाह की मार्फत की भी पेशन गोई कैसे इस औरत की जिंदगी पूरी हुई। लिखा है यूहन्ना 20:24-28 में, यीशु ने कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा, रब्बूनी, यानी आए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे न छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा है, और उसने ये बातें मुझसे कही है। तो क्या उसके बारे में पहले कह दिया गया था, ऐसे यूं को खुशखबरी सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, पुकार, डर मत, कह, देखो अपना खुदावंद। और आज वो शागिर्दों से आके सबसे पहले खुशखबरी दे रही है, मैंने खुदावंद को देखा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जहां पर इंजील की मुनादी की जाएगी, जो कुछ इस औरत ने किया वो भी इसकी यादगारी में कहा जाएगा, क्योंकि इसको शर्फ हासिल हुआ कि यीशु के जी उठने की मुनादी सबसे पहले दुनिया में जाके करी। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, इसकी बात ये गवाही दुनिया में दी जाना बड़ा जरूरी है। बाइबल मुकद्दस बताती है, दूसरे ग्रंथियों दूसरे बाब की 14वीं से 16वीं आयत में लिखा है, खुदा का शुक्र है जो मसीह ने हमको असीरों की तरह गश्त कराता है। मसीह ने हमको किन की तरह गश्त कराता है? असीरों की तरह, और अपने इल्म की खुशबू। ये जो कैंपों में फिरते हैं, घरों में फिरते हैं, मारे फिरते हैं, और पाजी यीशु मसीह ने इल्म की खुशबू लेके फिर लिया। हालेलुया। अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीले से हर जगह फैलाता है। आमीन। क्योंकि हम सब, क्योंकि हम खुदा के नजदीक निजात पाने वालों और हलाक होने वाले दोनों के लिए मसीह की खुशबू है। हालेलुया। भाई हम खुशबू है, जिन्होंने हलाक होने उनके भी लिए खुशबू है, जिन्होंने जिंदगी पानी उनके लिए भी खुशबू है। बाज के वास्ते तो मरने की बू है, और बाज के वास्ते जीने के लिए जिंदगी की बू है। कौन इन बातों के लायक है? मगर हम यीशु मसीह के इल्म की खुशबू है। बाज के वास्ते जीने की खुशबू, बाज के लिए मरने की बू, मगर है हम खुशबू दोनों के लिए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस बताती है, ना सिर्फ हम खुशबू है, ना सिर्फ हम बतौर चर्च खुशबू है, ना सिर्फ हम मसीह के इल्म की खुशबू है, बाइबल कुछ और भी बताती है। पौलुस रसूल फिलिप्पियों की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, बल्कि अफराद से है, बहुत है, मेरे पास बहुत कुछ है। तुम्हारी भेजी हुई चीजें
अब पतरस के हाथ से लेकर मैं आसूदा हो गया हूं। वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंदीदा है। हालेलुया। वो इतर, यहाँ पे कैमरा छोटा है, चर्च में इस्तेमाल होता है, डोनेट किया हुआ किसी ने, ये माइक्स किसी ने डोनेट किए हुए हैं, आवाज ऊंची उठती है इनसे। ये सारी चीजें क्या है? खुशबू है और मकबूल कुर्बानी है खुदा के हजूर। हालेलुया। तुम्हारी चीजें खुशबू है, तुम्हारी चीजें मकबूल कुर्बानी है। आप यीशु मसीह के उनकी खुशबू हो, आपकी चीजें यीशु मसीह के लिए खुशबू है, पसंदीदा खुशबू है। और आप उनको खुदा के घर में लाते हैं, उस पे निछावर करते हैं, अम्मी अब्बू रिश्तेदार दोस्त बहन भरा कहते यार क्या कमा चुका है, जाया ही करने हैं, पादरियां का ते कम ही है, इन्हां ते कहंदे ही रहने ते पादरी उन्हां चਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ जिन्ना चਿਰ खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ देना बंद नहीं कर देगा। जब तक खुदा आपको देता रहेगा पादरी कहते ही रहेंगे। आमीन। कब खुदा आपको देना बंद करेगा? और मुर्दे कुछ नहीं देते। बाइबल मुकद्दस बताती है तुम्हारी चीजें खुशबू है, पसंदीदा है। मगर खूबसूरती देखिए, इस औरत में, उन औरतों में खूबसूरती देखिए। जिस रोज यीशु मसीह मरे, औरतों ने क्या किया? और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थी, पीछे पीछे जाकर उसकी कब्र को देखा और ये भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई, लौट कर खुशबूदार चीजें और इत्र तैयार किया। औरतें जिस रोज यीशु मसीह मरा, उन्होंने यीशु मसीह के लिए खुशबूदार चीजें और इत्र तैयार किया या ना किया? किया। देखिए बाइबल बताती है उन्होंने खुशबूदार चीजें तैयार कर ली, इत्र तैयार कर लिया, मगर सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर यीशु की लाश ना पाई। क्या इन औरतों को ये सादत हासिल हो सकी कि वो खुशबू लगा सके यीशु? कौन बाजी जीत गई? हालेलुया। अभी देख, ये वक्त है, मरने के बाद कोई नहीं है। कई लोग मौका गवा देते हैं बरकत का। इन औरतों ने सब कुछ तैयार कर लिया, मगर इनके हाथ से वो मौका चला गया, उल्टबाजी लेके। और यीशु ने कहा इसने मेरे साथ भलाई की, हालांकि उससे ज्यादा खुशबूदार चीजें तैयार की गई होगी, मगर यीशु ने कहा उसने मेरे साथ भलाई की। हालांकि इन औरतों ने तैयार की चीजें, मगर यीशु ने कहा नहीं, जो कुछ इस औरत ने आज किया है वो बयान किया जाएगा दुनिया में, जाके ये चीज सुनाई जाएगी। ना सिर्फ इन्हीं को मौका ना मिला, बाइबल मुकद्दस बताती है, आपको पता है यीशु मसीह की लाश दो आदमियों ने सलीब पर से पिलातुस से जाकर मांगी। एक का नाम यूसुफ था और दूसरे का नाम निकोदेमस था। तो बाइबल में बताया गया है और निकोदेमस भी आया, जो पहले यीशु मसीह के पास रात को गया था और 50 सेर के करीब मुर्ग और ऊद मिला हुआ लाया। क्या उसको सादत हुई यीशु मसीह के बदन पर खुशबू 50 सेर लगाने की? ना, यीशु मसीह जिंदा हो चुके थे। कौन बाजी ले गई? जो पहले यीशु मसीह पर लगा। वक्त है, खिदमत का वक्त है। अगर आप भलाई करना चाहते हैं तो भलाई का एक वक्त है। एक वक्त आएगा वो कहेगा मुझे तेरे हड्डियों से और तेरे ज़बीहों से कुछ खुशी नहीं है। बाइबल में लिखा है एक वक्त आएगा वो कहता है मुझे तेरे हड्डियों से तेरे ज़बीहों से कोई खुशी नहीं है, बल्कि जो मेरे हुजूर कुर्बानी लाता है वो ऐसे है जैसे कुत्ते को कान से पकड़ के मेरे हुजूर लाता है। और बाइबल में लिखा है कुत्ते की उजरत और फाशा की कुर्बानी मेरे घर में मत लाना। मगर ये फाशा अपना सब कुछ बेचकर 1,06,78 रुपए बने और उसने यीशु मसीह के कदमों में रख दिए। उसने सोचा नहीं मैं एक प्लाट ले लूं, उसने सोचा नहीं मैं कम से कम कार तो लेना, उसने सोचा नहीं कम से कम अगर है मैं बैंक से जमा करवाते 10,000 महीना आएगा।
निछावर किया, उसको मौका मिल गया। दूसरों ने चीजें तैयार की मगर बाद में उन्हें मौका नहीं मिला। बाइबल बताती है इसहाक ने जब अपने बेटे याकूब को बरकत दी, फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, आए मेरे बेटे, अब पास आकर मुझे चूम। उसने पास जाकर उसे चूमा, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक। उस खेत की मांग है जिसे खुदा ने बरकत दी हो। खुदा आसमान की ओस और जमीन की फल भी और बहुत सा इनाज और तुझे और मैं तुझे बख्शे, कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुके। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। ये वो बरकत थी जब इसहाक ने अपने बेटे इस्माइल यानी याकूब को दी। और जब वो अपने बेटे याकूब को बरकत दे रहा था, उसने अपने बेटे से कहा, बेटे मुझे करीब आके चूम। और दोनों बाप बेटे गले मिले और बेटे ने बाप को चूमा और बाप ने बेटे के बदन की खुशबू पाकर कहा, देखो मेरे बेटे के बदन की महक देखो। किसको बाप ने गले लगाकर कहा, मेरे बेटे की महक देखो? किसकी बाबत? याकूब की बाबत कहा। याकूब का नाम क्या रखा गया? इस्राएल। और हमने गुज़श्ता दिनों में देखा खुदा यीशु मसीह का नाम क्या है? हकीकी कौन है? इस्राएल। हालेलुया। मैं आपको बता रहा था पिछले दिनों में कि किसी दोस्त ने कहा कि वो किसी शॉपकीपर के पास गया, शॉपकीपर से पूछा, जनाब महंगा वाला इधर कितने का है? पता चला 20,000 का इधर है मेरे पास। उसने कहा, जी इतना महंगा इधर 20,000 का? उसने कहा जी। उसने कहा, जी खसूसियत बताइए 20,000 के इधर की? कहता है, जनाब 6 माह तक इसकी खुशबू नहीं जाती। मगर यीशु मसीह के सर पर कितने वाला इधर लगाया गया? 1,670,000 रुपए वाला और 3,880 dirham वाला परफ्यूम यीशु मसीह के सर पर लगाया गया। अगर 20,000 के परफ्यूम की खुशबू 6 माह नहीं जाती तो लाख से ऊपर वाले इधर की खुशबू कितनी होगी? और इधर भी जटावासी का हिंदुस्तान से मंगवाया गया बेशकीमत इत्र। अजीब ख्याल था। जिस तरह यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह को मसा किया, उसी तरह यीशु मसीह के मरने से पहले एक बदचलन औरत ने यीशु मसीह को मौत के लिए मसा कर दिया। अजीब ख्याल। जिस घर में खुदावंद यीशु मसीह गए, शमौन कोड़ी के घर में, शमौन कोड़ी खुदावंद के दाएं हाथ बैठा हुआ है और इसका अपना भाई जिंदा होने के बाद यीशु के दानी तरफ बैठा हुआ है और शमौन बाईं तरफ बैठा है। अजीब मंजर दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह दरमियान में है। लग रहा है यीशु मसीह मुर्दों का भी खुदा है, यीशु मसीह जिंदों का भी खुदा है। जब हम यशायाह की पेशगोई देखते हैं तो यशायाह एक नबी है, एक सेंट है जो यीशु मसीह को बपतिस्मे पर मसा करता है। और ये एक बदचलन है जो यीशु मसीह को मौत से पहले इधर से मसा करती है। क्या समा है कि यीशु मसीह जो है सेंट्स और जो सिनर्स हैं दोनों के खुदा है। क्या समा है? औरत को दिख दिया जा रहा है मगर यीशु मसीह कहते से दिख ना करो, उसने मेरे साथ भलाई की है। जब आपको दिख किया जा रहा हो, जब आपकी बैक बाइटिंग की जा रही हो, जब 4 बंदे बैठ के किसी 5वें बंदे के बरखिलाफ बातें कर रहे हो तो उस वक्त बैक बाइटिंग ना सुने। अगर आप खामोश रहते हैं उस वक्त, इसका मतलब है आप उन चारों में उसकी बैक बाइटिंग और उसकी जो ऐब जोई है उसमें शामिल है। उस वक्त दिलेरी से उठे, कहे जनाब मैं उस शख्स की बड़ी इज्जत करता हूं और उसके बारे में मैं ऐसी बात सुन नहीं सकता और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी उसके बारे में कोई बुरी बातें करना सुनना पसंद नहीं होगा। मेहरबानी से टॉपिक चेंज करें। मगर हम क्या करते हैं? हाँ जी वो प्रेरणा नहीं ले जी कितना साजे, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो जी आदत से वो आपका भी ऐसे करता जी। जब तक आप उस
उसके लिए फर्म स्टैंड नहीं लेते, आप बैक बाइटिंग करने वालों में शामिल हैं। अगर आप उनमें शामिल नहीं होना चाहते तो आप जुर्रत से कहें जनाब मेहरबानी से टॉपिक चेंज करें, मैं उनके साथ सुन नहीं सकता। और आप यकीन करें कि मेरे लिए मेरा चर्च मेरे खानदान से अहम है, और कोई चर्च के बारे में बात करे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं चाहे 70 बातें करूं मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कोई चर्च के बारे में बात करे या कोई कलीसिया के बारे में बात या पर्सनली किसी के बारे में कोई बात करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नेवर एवर। हमारे बारे में खुदा के सामने कोई बात करे, खुदा कहता है मैं 70 गल्ला करा तेरी जरूरत के लिए भाई तू मेरे बंदे के खिलाफ को गल करे। मैं मूसा नु जो मर्जी कहा तू भैन हो क्यों इंज के तेनु 7 दिन ते कोड़ पवे नहीं होने। तेरी जरूरत कैसी तू मेरे बंदे के खिलाफ ऐसी बात करे? वो मेरा और उसका मामला है, जो मर्जी मैं उससे करूं, मगर तू क्यों से करे? मेरे सिस्टर उस दिन उस बड़े हॉल से 3 तरह के गुनाहगार निकल कर गए थे, जहां पे यीशु मसीह का खाना खिलाया गया था। और आज जब यीशु मसीह ने आपके लिए एक बड़े खाने का एहतमाम किया है, तो यहाँ पे भी 3 तरह के गुनहगार निकल कर जाएंगे। पहली बात तो यहूदा किस तरह का गुनहगार था, जो यीशु मसीह के साथ रहा 3.5 साल तक करीब रहा, मगर जितना करीब था उतना ही दूर था। जाहिरी तौर पे करीब था मगर अंदर से उतना ही दूर था। ये एक रूहानी तरह का लॉस्ट केस था। 100% खुदा के साथ मगर हकीकत में 100% लॉस्ट केस। बहुत से मसीही आज हम ऐसे ही हैं, जाहिरी तौर पर 100% हम खुदा के साथ हैं मगर 100% खोए हुए। उस दिन यीशु मसीह चाहता, जिस दिन यहूदा उसको दिख कर रहा था, तो यीशु कह सकता था चुप करके बैठा, मैं तेरे सारे काम जानना, तू चोर है। बाइबल में लिखा है वो चोर था, क्योंकि जो कुछ चंदे की थैली में पड़ता वो निकालता रहता था। यूं समझ लें कि हर रोज अपने आप को उन्हें को पैसे काट के तनखा दे लेता सके नहीं यार इना को तो मैं काम कीता ही नहीं असली। हर रोज अपने उस हदिये की थैली से पैसे निकालता था। यीशु उसके मुंह पे कह सकते थे तू भी चोर है। मगर मैंने कहा आसमान का रूह लोगों के पाप लोगों में पब्लिकली जाहिर नहीं करता, मगर आज के प्रॉफिट करते हैं। बैठे बैठे कहेंगे भाई साहब प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, पाप मुझे कह रहे तेरे अंदर ये पाप है उसको दूर कर दे। नहीं, पाप को ऐसा नहीं कहता, पाप को पब्लिकली शर्मिंदा नहीं करता। ना किसी आज तक खुदा के बिब्लिकल नबी ने ऐसा किया है, और ना खुदा यीशु मसीह ने किसी के पाप पब्लिक में जाहिर किए हैं, मगर आज के नाम नहाद प्रॉफिट करते हैं। मगर आसमान के रूह का ये तरीकाकार नहीं है। उस रोज अगर खुदा यीशु मसीह चाहता तो वो शमाउन को जो दिख करता रहा था, वो उस औरत के बारे में बातें कर रहा था, उसको भी यीशु मसीह कह सकते थे। और यीशु मसीह एक ही बात की, मैं तेरे घर आया, पानी नहीं तूने मुझे दिया पाँव धोने के लिए, भरोसा नहीं तूने मुझे दिया। असूल था, मेहमानों को भरोसा देते थे, पाँव धोने के लिए पानी देते थे, मगर वो प्राउड फरीसी जरूरत ही महसूस नहीं कर रहा। लेकिन देख, जब से आया उसने पाँव चूमना नहीं छोड़े, आंसुओं से भिगोए हैं, क्योंकि इसके गुनाह ज्यादा माफ पे, तेरे गुनाह कम माफ पे, इसलिए तो कम मोहब्बत दिखाता है। अगर हम आज मोहब्बत कम दिखा रहे हैं तो समझे हमारे पूरे गुनाह माफ नहीं हुए। अगर आज हमारे यीशु मसीह से जो भलाई नहीं कर पा रहे तो समझे हमारे अंदर कुछ मामला दुरुस्त करने की जरूरत है। मैंने कहा 3 तरह के गुनाहगार निकले। यहूदा जो 100% खुदा के साथ 100% खुदा से दूर, शमाउन आधा खुदा के साथ आधा खुदा के खिलाफ। तो जो आधा खुदा के साथ और आधा खिलाफ है उसका भी केस पूरा ही लॉस है। 3री तरह की गुनाहगार मरियम, बदचलन, बुरी औरत, बुरा करदार, माफी मांग ली, तौबा कर ली और नजात याफ्ता होकर खुदा से का सलामत चली जाए। आज खुदा आपसे कहना चाहता है सलामत चली जाइए, मगर गुनाह न करना। जाओ